Hello everyone. So today I am here with the video to make you all understand how to fill OMR sheet. ये क्लास 10th और 12th बोर्ड के लिए है because they are going to appear in board examination with new pattern. ये पैटर्न नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है. इसमें 2 टर्म एग्जाम देने हैं. फर्स्ट टर्म विल बी ऑप्शनल and the second term means with optional questions and the second term will be with subjective questions. So I'm going to make you understand about this OMR sheet कि उसे भरना कैसे है जिसमें कि हमारा बहुत कम चांसेस हो क्वेश्चन गलत होने का due to filling it up. So points are given here. One by one I'll explain. I would request you all कि आप सभी इस वीडियो को बहुत अच्छे से लास्ट तक देखें ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो जाए. इस OMR शीट को भरने के लिए CBSE ने एक सैम्पल OMR शीट पैटर्न जो है अपलोड किया है. सो आई एम गोइंग थ्रू दैट OMR शीट. So you can see at the corner of this OMR sheet, one by one I am going to explain it. The first very important point is कि details of the candidates will be pre-filled in the OMR sheet. जो कैंडिडेट के डिटेल्स होंगे वो OMR शीट में पहले से भरे हुए होंगे. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर नज़र मत डालिएगा. बहुत ही ध्यान से एक फील्ड पर्टिकुलर को देखिएगा. इज एवरीथिंग गिवन प्रॉपर्ली और नॉट. आपका सारा इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं आप अपने एडमिट कार्ड से मिला लीजिएगा. ओनली यू हैव टू फिल योर क्वेश्चन पेपर कोड, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो है वो किसी भी कोड में आ सकता है डिफरेंट सेट्स में 1, 2, 3, 4 और ABCD. सो दैट यू हैव टू फिल. upper right corner there is a column given in which you have to write question paper code. The second important part is there, after seeing everything given properly, then there will be written I confirm that all particulars given above are correct. आपको देखना है और पढ़ना है. नीचे में लिखा होगा कि मैं कंफर्म करता हूं कि इसमें सारे भरे गए पार्टिकुलर्स जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं. Then you have to sign your own signature with your running hand. That space will be given for that. The next point is given that you have to use only blue or black ball pen. I would request you to go for blue ball pen. That would be better for you. The next thing is there, never use pencil on OMR sheet. Once again I am repeating, मैं फिर से बता रही हूँ, पेंसिल को बिल्कुल भी आप OMR शीट में यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि इसे अनफेयर मीन्स माना जाएगा. इसे माना जाएगा कि आप अनफेयर मीन्स के द्वारा गए हैं एंड योर पेपर मे बी रिजेक्टेड. सो नेवर यूज योर पेंसिल बट येस यू मे वेट एंड सी इफ यू आर कन्फर्म. अगर आप कन्फर्म हो जाते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है तो आप वहाँ पे लिखेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो दिया हुआ है इस OMR शीट में, इसमें दिया हुआ है स्पेस 60 क्वेश्चंस के लिए है. 60 MCQ क्वेश्चंस के लिए स्पेस दिए गए हैं. बट एज पर क्वेश्चंस गिवन इन द एज पर योर आंसर्स दिस शुड बी ओनली इन सीरियल. सपोज इफ द क्वेश्चंस इन फर्स्ट ग्रुप इट्स गिवन 25 क्वेश्चंस और आपको कहा जा रहा है कि इन 25 क्वेश्चंस में केवल 20 अटेम्प्ट करने हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुली उसके सीक्वेंस पे ध्यान दीजिएगा. आपने अगर क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, 2 ना करके 3 अटेम्प्ट किया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर यू फिल द OMR शीट. क्योंकि कंप्यूटर को तो फर्स्ट 20 ही लेना है. आपने जो फर्स्ट 20 किया है वही वो लेगा. सो बी वेरी केयरफुल. Suppose if you have colored first question, then you are attempting for third question, then you leave second question in OMR sheet also and go for third question. And see the given instruction. जो instruction दिया गया है उसे बहुत अच्छे से पढ़िए आप. Then it's given here that candidate changing question for the OMR writing, then giving answer, it will not be evaluated. Suppose if the question paper is given that you have to attempt 45 questions only or question number 45 only in this set, and if you are attempting on 46, it may not be corrected by the computer. So once again I am repeating, once again I am telling you, please see the given instructions properly.
For giving response, 4 circles are given. For giving your response, your answer, 4 circles are given, A, B, C, D, or 1, 2, 3, 4. Suppose your answer is C. Then you have to color C. The round, the circle, you have to color C. But before coloring, be very confident that yes, C will be the answer. Then be very careful, after 4 circles there is a box. There is a rectangular box given. वहाँ पे एक rectangular box दिया हुआ है. वो box, ध्यान से आप सुने, उस box में आपको आपके response का number लिखना है. अगर आपने 3rd number को color किया है तो आपके box में जो है C लिखेंगे आप. So whatever the number is there, you have to write in that rectangular box. And a very important thing is there about the box. अगर बाद में आपको ऐसा लगता है कि आपने सर्कल तो सी में किया पर उसका करेक्ट आंसर डी है, सपोज इफ यू थिंक कि करेक्ट आंसर तो डी है और मैंने सी कर दिया कलर, इन दैट केस आप बॉक्स में अगर डी लिखते हैं तो योर आंसर विल बी कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू द बॉक्स, तो आपका सही आंसर हो जाएगा. देन कंप्यूटर विल फर्स्ट गो थ्रू द बॉक्सेस. सो आई रिक्वेस्ट यू, बॉक्स में लिखने से पहले एक बार फिर से आप अपने OMR शीट को या क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा और तब फाइनली बॉक्स में लिखिएगा. बट नेवर यूज पेंसिल. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, नेवर यूज पेंसिल. द नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन दैट आफ्टर दैट, यू नो, फर्स्ट 4 सर्कल्स आर देयर फॉर गिविंग योर रिस्पॉन्स. पहला 4 सर्कल है जिसमें आपको अपना आंसर देने हैं, रिस्पॉन्स देने हैं. उसके बाद एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें आपको आंसर नंबर लिखना है, मतलब आंसर नंबर मींस ऑप्शन नंबर लिखना है. उसके बाद एक और सर्कल है, उसके बाद एक और सर्कल है. सो व्हाट टू डू विद दिस सर्कल? उस सर्कल को तभी यूज करना है अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है. लेट मी क्लैरिफाई वंस अगेन. मैं आपको क्लियर कर रही हूं कि सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, क्वेश्चन नंबर 2 बनाया और आपने कलर कर दिया, बॉक्स में भी आपने अपना रिस्पॉन्स दे दिया, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दिया. अगर आपने अपना क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दिया, इन दैट केस यू हैव टू कलर द 5th सर्कल. इन केस में आपको 5th सर्कल को कलर करना है, जिसे कि ये माना जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है. इसके बाद भी अगर आप उसका आंसर देते हैं तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग. मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं हमारी बात को कि आप जो 5th सर्कल है उसे कलर करेंगे. इन व्हाट केस? इन द केस व्हेन यू आर नॉट अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन. So it will become easy for examiner or for any computer to find out कि आपने ये question attempt नहीं किया है. Then there is given that first of all candidates are advised कि first जितने भी हैं response उनको darken कर ले. जब वो satisfy हो जाए तो box में response लिखें और completely satisfaction जब उनको हो जाए कि उन्होंने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है तो वो उसकी तरफ जाए, उस क्वेश्चन की तरफ जाए जहां उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है और उस लास्ट वाले सर्कल को कलर कर दे. नाउ रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अगेन एंड अगेन. एंड इफ योर 5th सर्कल इज एम्प्टी, अगर आपका वो 5वां सर्कल जिसको आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है वो अगर आपका कलर नहीं किया हुआ रहेगा तो उसे कंप्यूटर मानेगा कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है एंड दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज इन अ सीक्वेंस. तो आप हो सकता है कि 1 मार्क्स लूज कर दें. तो इन बातों का आप बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे. ऑलरेडी ये सैम्पल जो है, ये क्वेश्चन का जो सैम्पल है, OMR शीट का सैम्पल अवेलेबल है और मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो भी CBSE के ऑनलाइन गाइडलाइन से ही डाउनलोड किया गया है. So my request is there, once again I am repeating, be very careful. First you see your questions, then you start filling it up. Never use pencil, never use pencil. Response के अनुसार आप दाखिल कीजिए. बॉक्स में आंसर का रिस्पॉन्स रिटन वर्ड्स में, लेटर्स में दीजिए
और अगर किसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो 5वां जो सर्कल है उसे अच्छी तरह से फिल कीजिए। अपने पार्टिकुलर्स को जो कि ऑलरेडी भर के आया है सीबीएसई की तरफ से देखना ना भूलें कि वो सही है या नहीं, और तभी आप अपना सिग्नेचर लास्ट में दिए गए स्पेस में रनिंग हैंड से करें। In my next video, I am going to make you understand what should be avoided while filling the OMR sheet. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिलिंग OMR शीट करने का जो तरीका है आपने बहुत ध्यान से सुना होगा and you are going to score good marks. All the very best and be careful. Thank you very much. Thanks again.